अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू parkedu.tv। लास्ट वीडियो में हम आइसोमरिज़म के कुछ टाइप्स को डिस्कस कर चुके। तो अब ऑप्टिकल आइसोमरिज़म को स्टार्ट करते हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज़म क्या है? ऑप्टिक्स लफ्ज़ जो ऑप्टिक्स यहाँ पर है इसका मतलब है लाइट। मींस एन आइसोमरिज़म दैट इज़ रिलेटेड टू लाइट इज़ कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमरिज़म। क्या मतलब है लाइट और आइसोमरिज़म का क्या रिलेशनशिप है, इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में क्लियरली डिस्कस करेंगे। ओके, यहाँ पे इस टॉपिक में एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट आर द थ्री केसेस व्हेन लाइट डज नॉट रोटेट। एक्चुअली आइसोमरिज़म जो है इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन दैट आर प्रेजेंट इन द मोनोसैकराइड्स। लेकिन ऑप्टिकल आइसोमरिज़म में जो है कुछ ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं जब जो है लाइट रोटेट करती है और समटाइम्स रोटेट नहीं करती। अच्छा, जो रोटेशन है, रोटेशन के बिहाफ पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमर्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन समटाइम्स देयर इज़ नो रोटेशन ऑफ लाइट। ओके, दैट्स वाई वी डिस्कस थ्री डिफरेंट केसेस and these three different cases are also important for exams point of view, so we should discuss it here. uh, First one is when there is no asymmetric carbon, then there will be no rotation of light। ठीक है, जब asymmetric carbon नहीं होगा तो रोटेशन नहीं होगी। कीप इन माइंड वन थिंग that optical isomerism totally depends upon the number of asymmetric carbon. When there is no asymmetric carbon, there is no optical isomerism, and such type of sample and such type of monosaccharide is known is said to be optically inactive. Okay, secondly, when dextrorotation is equal to levo-rotation, both of them cancel each other and there is no net rotation. Okay, that's why light doesn't rotate and moves in the straight line. And there is a third case that's important one, and that's also necessary to be discussed, that within the molecule sometimes there are two parts. Okay, sometimes some are the examples in which uh, one molecule contains two parts. One part of the molecules is levorotatory, while the other part of that molecule, that same molecule, is dextrorotatory. Okay, the levorotatory part and the dextrorotatory part, okay, work together. Means levo-rotation and dextro-rotation are equal to each other but in opposite direction. So that's why they cancel each other. When levo-rotation and dextro-rotation cancel each other, so there is no net rotation. That's why light does not rotate and moves in the straight line. Okay. These were the three different cases in which light does not rotate and moves forward. Okay, now come to the rotation. When light falls on any sample of monosaccharides, it may rotate to the right side or rotate to the left side. Like, first come to the dextrorotatory. So what are the dextrorotatory? Those monosaccharides that rotate light to the right side. अगर सैंपल पर लाइट आप फॉल करते हैं और वो लाइट जो है राइट साइड पे रोटेट करती है, देन दिस टाइप ऑफ मोनोसैकराइड्स विल बी नोन एज डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और इन्हें हम पॉजिटिव टाइप भी कहते हैं। ओके, अगर हम बात करें इसकी एग्जांपल की, तो जो नेचुरली अकरिंग ग्लूकोज है दैट इज़ डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर ग्लूकोज पर प्लेन पोलराइज्ड लाइट फॉल करवाई जाए तो लाइट इज़ रोटेटेड टुवर्ड्स द right side. That's why we say that it is dextrorotatory. Secondly, there may be another case that when you fall light on the monosaccharide, the light may rotate to the left side. Okay, if light rotates to the left side, then this type of monosaccharides will be known as levo or rotatory, and this type of monosaccharides are also known as negative
type. Okay, if we discuss its example, so fructose, naturally occurring fructose exists in the form of levo or rotatory. Keep in mind one thing, that fructose when is in combined form, it is in the form of uh, fructofuranose, and it is dextrorotatory. When it is in free state, it exists in the form of fructopyranose, and it is levorotatory. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें कि रोटेशन ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन. सो व्हेन देयर इज नो एसिमेट्रिक कार्बन, सो सच टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड विल बी नोन एज ऑप्टिकली इनएक्टिव मोनोसैकेराइड. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहले भी बोल चुका हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि दोबारा भी रिवाइज कर लूँ. नो, लेट मी डिस्कस एन अदर क्वेश्चन, दैट सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. Okay, when it's in solid state, but it becomes levorotatory when we add sucrase enzyme in the solution. जब solution में हम sucrase enzyme डालते हैं तो ये levorotatory हो जाता है, ये dextrorotatory नहीं हो जाता. तो इसके पीछे क्या रीज़न है? ओके, तो इसके पीछे क्या रीज़न है, इसे हम देखते हैं. तो अगर हम देखें सुक्रोज को, when it is the combination of ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज. ठीक है, इसमें कौन सा ग्लूकोज होता है? एक्चुअली इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोपायरानोज एंड फ्रुक्टोपायरानोज. अच्छा, इसमें अगर देखें तो ग्लूकोपायरानोज जो है, ग्लूकोपायरानोज इज़ डेक्स्ट्रोरोटेटरी. सिमिलरली फ्रुक्टोफ्यूरानोज इज़ आल्सो डेक्स्ट्रोरोटेटरी. Okay, so when sucrose is in solid state, in combined state, in joint state, so it is dextrorotatory. But when you add sucrase enzyme in sucrose, so glycostic linkage is broken down. जब glycostic linkage break हो जाता है तो होता क्या है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज फिर से क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. अब जो ग्लूकोज सेपरेट होगा वो क्या होगा, ग्लूकोपायरानोज ही होगा. लेकिन फ्रुक्टोज हम अच्छी तरह जानते हैं जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, दैट इज़ फ्रुक्टोपायरानोज. ठीक है, फ्रुक्टोपायरानोज इज़ levorotatory, not the dextrorotatory. और keep in mind another thing, that levorotation is much more stronger as compared to the dextrorotation. ठीक है, तो अब यहाँ पे कंपटीशन होगा ग्लूकोपायरानोज जो कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और फ्रुक्टोपायरानोज जो कि लिवोरोटेटरी है. और यहाँ पे हम एक बात और डिस्कस कर चुके हैं कि लिवोरोटेशन इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द डेक्स्ट्रोरोटेशन. तो सोल्यूशन में क्या होगा, डेक्स्ट्रोरोटेशन जो है ये डोमिनेट हो जाएगी. दैट्स वाई सुक्रोज जो है जब ब्रेक होगा, ठीक है, जब सोल्यूशन में होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, दैट इट इज़ लिवोरोटेटरी. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न दैट is the cause for sucrose to be known as invert sugar. क्यों इसे invert sugar कहते हैं, क्योंकि पहले ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, लेकिन सोल्यूशन में जब हम सुक्रेज एंजाइम डालते हैं तो उसकी मौजूदगी में ये चेंज हो जाता है, किसमें, लिवोरोटेशन शो करता है, ये लिवोरोटेटरी हो जाता है. नेक्स्ट जो है पायरानोज और फ्यूरानोज आइसोमरिज्म को अगर देखें तो सिंपल सी बात आप याद रखें कि वो मोनोसैकेराइड, वो मतलब द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसैकेराइड्स दैट्स 5 मेंबर रिंग. ठीक है, अगर 5 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर है मोनोसैकेराइड्स का, सच टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर कॉल्ड पायरानोजेस एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पायरानोज स्ट्रक्चर. और अगर 5 रिंग स्ट्रक्चर है तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर कहेंगे. ये सिंपल सी बात है. और जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर इज आल्सो नोन एज फिशर प्रोजेक्शन. ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन अगर लफ्ज़ आप देखते हैं तो इसके लिए ओपन चेन या स्ट्रेट चेन फार्मूला ही आपके माइंड में आना चाहिए. बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, या नोट की सूरत में मैंने लिख दिया. अच्छा, नेक्स्ट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डी शुगर एंड डी शुगर, एल शुगर्स, डेक्स्ट्रोरोटेटरी शुगर्स एंड लिवोरोटेटरी शुगर. अब देखिए हमने दो तरह से क्लासिफिकेशन पढ़ ली, एक डी और एल का कंसेप्ट है शुगर्स के लिए, और दूसरा डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी का है. तो अब क्या इनमें कोई रिलेशनशिप है?
जी, इसे हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो अगर बात करें डी और एल शुगर्स की, तो दीज आर क्वाइट डिफरेंट फ्राम डेक्स्ट्रोरोटेटरी एंड लिवोरोटेटरी। ठीक है, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लिवोरोटेटरी से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, एक जो डी शुगर है वो लिवोरोटेटरी भी हो सकती है, वो डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकती है। एक एल शुगर जो है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकती है, ये लिवोरोटेटरी भी हो सकती है। ठीक है, इसमें कोई जो है इनमें सिमिलरिटी ऐसे समझिए, ये सिमिलरिटी इनमें नहीं होती, इनमें कोई स्पेसिफिक रिलेशनशिप नहीं है। मीन ये ज़रूरी नहीं है कि जो डी शुगर है ये हमेशा डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ना ऐसी कोई बात नहीं है। ये डी शुगर जो है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकता है, लीवर भी हो सकता है। एल शुगर के लिए लाजमी नहीं है कि ये लिवोरोटेटरी होगा, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी भी हो सकता है, ये लिवोरोटेटरी भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें कि वाई ग्लिसरॉल्डिहाइड इसका रेफरेंस शुगर, तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट इज द स्पेसिफिक रोटेशन। व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन? इट इज़ एक्चुअली द रोटेशन in the degree of 1 gram of substance per ml of solvent in a tube of 1 decimeter in length. Okay, this is called the specific rotation. ये actually जो है rotation of सॉल्वेंट की बात हो रही है। नेक्स्ट जो है ये इनएक्टिवेशन की जो कंडीशंस हैं, इनमें कुछ पॉइंट्स हैं बड़े इंपॉर्टेंट थे जो हमने पहले मिस किए हैं, मैं यहाँ पे दोबारा से बोल देता हूँ। हमने 3 कंडीशंस पढ़ी थी जब इनएक्टिवेशन का केस सीन बनता है। तो इसमें जो पहली थी वो क्या थी? जब कोई एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होती तो तब लाइट रोटेट नहीं करती और उस सैंपल को हम कहते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। अच्छा, सेकेंडली हमने देखा था कि जब दो आइसोमर्स मौजूद हों जिनमें से एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी हो दूसरा लिवोरोटेटरी हो, तो वहाँ पे लिवोरोटेशन और डेक्स्ट्रोरोटेशन एक दूसरे को compete कर जाए, एक दूसरे को कैंसिल कर दे, तो वो भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मिक्सचर इज़ कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, इस मिक्सचर को हम रेसमिक मिक्सचर कहते हैं और दिस फिनोमेना इज़ नोन एज एक्सटर्नल कंपनसेशन। ठीक है, ये एक्सटर्नल कंपनसेशन और रेसमिक मिक्सचर वाला पॉइंट मैंने ऊपर मिस किया था, इसलिए मैंने दोबारा से ये यहाँ पे नोट कर दिया। अच्छा, अगर देखें यहाँ पर तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि विद इन द सेम मॉलिक्यूल जो है 1 पार्ट इज़ लिवोरोटेटरी एंड सेकंड पार्ट इज द डेक्स्ट्रो रोटेटरी पार्ट। तो उसमें जो है भी जो है डेक्स रोटेशन और लिवर रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं और लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, रोटेट नहीं करते, और इसलिए इन्हें भी कहते हैं कि दीज आर ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस इज़ कॉल्ड ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल। ठीक है, अच्छा, दिस मॉलिक्यूल दिस कंपाउंड इज़ कॉल्ड मीज़ो कंपाउंड। ये मीज़ो कंपाउंड का वर्ड भी मैंने मिस किया था, इसलिए मैंने दोबारा से ये एक्सप्लेन कर दिया है। एंड दिस कैटेगरी ऑफ फिनोमेना इज़ नोन एज इंटरनल कंपनसेशन, और इस फिनोमेना को हम इंटरनल कंपनसेशन कहते हैं। ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसकी अगर एग्जांपल देखें तो मीज़ो टार्टरिक एसिड जो है इसका 1 पार्ट जो है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, सेकंड पार्ट ऑफ मीज़ो टार्टरिक एसिड इज़ लिवोरोटेटरी एंड both dextrorotatory part and livorotatory part cancel each other's effect, so overall mesotartaric acid is optically इनएक्टिव। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक बहुत ज़्यादा दुआ में याद रखिएगा। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अब तक भी pakidu.tv को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि कोई भी छोटी सी नोटिफिकेशन भी आप मिस ना कर पाएँ। थैंक यू।